Okay, Bismillah Rahman Rahim. Today we talk about two-dimensional transformation. So what is say 2D? When I say 2D, what do you mean 2D? 2D. What is 2D? Tell me about what is 2D. 2D क्या है वो? When we talk tomorrow about 3D and today we are talking about 2D. What is difference between 2D and 3D? It's simple. सर 2D में दो एक्सिस यानी ब्रेड्थ और लेंथ होती है. Yes, we have two dimensions. The breadth and the length. Length and breadth. NGTH. लेकिन 3D में क्या होता है एक्स्ट्रा? डेप्थ भी होती है. Height or depth, you could say. Now here we have only x and y axis, but here we have x, y, and z. Because whatever the plane, we also talk about it's a plane. Plane means which has two dimensions, length and breadth. जैसे piece of paper है ये piece of paper है, इसकी length है, इसकी breadth है, इसकी length है और इसकी ये है, ठीक है? लेकिन इसकी मोटाई नहीं है, thickness नहीं ना इसमें, so ये plane है, ठीक है? इस वॉल के ऊपर काम करेंगे, इसमें आप अगर पेंट करना है इस वॉल को अगर आपको पेंट करना है, हाउ कैन यू पेंट? यू कैन पेंट इट्स लेंथ, ब्रेड्थ एंड यू कैन पेंट इट्स लेंथ. कैन यू पेंट इट्स डेप्थ? कैन यू गो? वॉल एक्सटेंड नहीं हो रहा ना, वॉल का प्लेन ही है, कंप्लीट टू डिमेंशनल है, ठीक है, जिसको आप एरिया कहते हैं. यू कैन हैव एन एरिया ऑफ दैट. लेकिन जब 3 डिमेंशन आता है तो उसमें वॉल्यूम आ जाता है ना, बिकॉज नाउ इफ वी हैव दिस मोबाइल फोन, इट हैज द लेंथ, ब्रेड्थ और उसकी थिकनेस भी है. So this is z axis. Z axis में जा रहा है ये, जिसमें मोटाई आ रही है. So if we have only x axis and y axis, now if we move in a z axis, for example, this is x axis and this is y axis, and you also have a z axis, that means this thing is going out of this screen. The screen itself is a plane. Okay, जो हम बाद में प्रोजेक्शन पढ़ेंगे, यानी कि 2D सरफेस पे 3D बनाना, यानी कि ये जो मैं यहाँ पे जो स्क्रीन है ये तो 2D है ना, because I can write this way or this way. So it's a 2D. लेकिन ये जो है ये बाहर आ रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें बनाऊंगा ऐसे. Now it looks as if it's a 3D, but I'm making 3D picture on 2D. Do you understand? So 3 dimension means where we have the thickness and all, the z axis and all. Okay, but 2D picture means which is only just like this rectangle, okay, or this circle. So we draw a few things, like we drew the circle, we did the line, okay, we could have a triangle and all these features. Now the next thing in computer graphics comes, because computer graphics starts in animations, because you want to move things, you want to know, you can't stay at one place, you have to move the things, you have to make it. So how will you move in two-dimensional space? How will you actually move that your object in a two-dimensional space is the transformation. So transformation is, transformation is change in, either we can change its orientation, okay, or we can change its shape, or we can change its size. ओरिएंटेशन का मतलब है इन दूसरे अल्फाज में रोटेट, यानी कि मेरा ये फोन ऐसे था, अब मैंने इसको ऐसे कर दिया या ऐसे कर दिया या ऐसे कर दिया. सो ये ओरिएंटेशन में इसकी चेंज कर रहा हूँ. in a 2D space I am changing its orientation, so I am making that, in other words means I am rotating it. I can change its shape and size, I can change its shape, I can make it deform its shape. ये ऐसे था and उसमें तास you go थोड़ा इसी पॉइंट you go योकुन पाम, you go योकुन पाम, so ये बनो एक इतके पाम. तो मैंने इसकी शेप ही चेंज कर दी, जो शेप थी वो शेप सेम नहीं रही. ये ऐसे था, मैंने इसको मैक्सिमाइज किया और ये बन गया, ठीक है. मैं इसको साइज भी इंक्रीज कर सकता हूं, मैंने इस चीज को बड़ा बना दिया या छोटा बना दूंगा. आई कैन जूम अप, जूम इन, बड़ा, स्मॉल. So I can change the size, I can change the shape, I can change its orientation, okay, or I can simply move it from one point to other point. This all things comes in the transformation. आई बात समझ में?
सिंपल है ना? मेहराजुद्दीन, मिन्हा, दानिश, यूसुफ, मीर, Said Athar, Majid Riaz, and Sohaib Manzoor. I'm giving last warning. If you do not want to put your camera on, then you should get lost from here. This is getting ridiculous now. I'm telling you time and again, put on your camera and you're not putting. This is very bad. Agar to dimag se MC Mockley data, it's not that much of a big class, MC Mockley data. You understand? I'm giving deliberately very small classes ताकि computer graphics जो है हमारे पास time बहुत है, we can complete all syllabus. लेकिन अगर हम एक साथ पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज होगा कि मेरा अर्ली हो जाएगा सिलेबस खत्म एंड यू विल हैव लॉट ऑफ डेज लेटर ऑन, और कुछ होगा नहीं, ठीक है? इसीलिए मैं छोटे छोटे क्लास दूं ताकि आपके समझ भी आ जाए अच्छे से और कोई बोर भी नहीं हो. नाउ सो ट्रांसफॉर्मेशन इज देयरफॉर गोइंग टू हैव मेनी टाइप्स. द फर्स्ट थिंग जिसको मैंने कहा कि यू वांट टू मूव particular thing from one point to other point, okay, is called as translation. What's called? Translation. जी, ट्रांसलेशन के बाद अगर आप अपने इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं ना, यू वांट टू रोटेट, जैसे मैंने कहा कि ओरिएंटेशन चेंज की, सो दैट इज कॉल्ड एज रोटेशन. ओके, now you want to make it bigger or smaller, that's called as scaling. Okay, who's messaging something? That's called as scaling. ये फंडामेंटल तीन है, इन्हीं को हम यूज करके, इन तीन को हम यूज करके और दो को डिराइव करते हैं, दे आर डिराइव्ड, ठीक है? उसमें एक है दिस इज कॉल्ड एज शेयरिंग एंड एक है दिस कॉल्ड रिफ्लेक्शन. Now, ये जो शेयरिंग एंड रिफ्लेक्शन है, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम दीज थ्री, दे आर नथिंग डिफरेंट, दे आर एक्चुअली दीज थ्री एंड वी डिराइव यूजिंग द शेयरिंग एंड रिफ्लेक्शन. ट्रांसलेशन में मैंने क्या कहा, आप मूव करना चाहते हो फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन दिस स्पेस एंड यू वांट टू कैलकुलेट इट्स कोऑर्डिनेट्स, दैट्स कॉल्ड ट्रांसलेशन. सिंपल, मैंने ये कप था इधर, ये इधर लिया, इट्स कॉल्ड ट्रांसलेशन, ठीक है? रोटेशन में अगर ये मेरा वैलेट है, मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, ठीक है? दैट्स रोटेशन, यानी कि यू मूव, okay, clockwise or counterclockwise. That means I have to talk about the angles. If I want to rotate, I want to talk about the angles. Scaling में मुझे एक चीज था, मैंने इसको बड़ा किया या छोटा किया. अब शेयरिंग में क्या हो रहा है, मैं शेप चेंज कर रहा हूँ, आई एम चेंजिंग इट्स शेप, आई एम मेकिंग इट लिटिल डिफरेंट शेप. ये इस शेप का था और मैंने इसको ये अपनी जगह रखा, ये क्योंकि चेंज जो आप कर सकते हो वो एक्स डायरेक्शन में कर सकते हो या वाई डायरेक्शन में कर सकते हो, ठीक है ना? You can change your stuff into the x direction or y direction. Therefore, जो शेयरिंग भी होगी वो x डायरेक्शन की होगी या y डायरेक्शन होगी. फर्ज कीजिए मैं इसका x डायरेक्शन सेम रख रहा हूं, लेकिन ये पॉइंट दो में चेंज कर रहा हूं, ठीक है? मैं इन दो पॉइंट्स को इधर ला रहा हूं, इसको इधर, इसको इधर, तो यानी कि ये ऐसे बन जाएगा ना, सो इसकी शेप चेंज होगी. और आई कैन मेक इट इन अ डिफरेंट वे, ऑन दिस वे, ओके? x और y में कहीं से भी आप शेप चेंज कर सकते हो. शेप चेंज में क्या होता है कि एक चीज आप उधर ही रखोगे, दूसरी चीज को मूव कराओगे ताकि वो उसकी शेप डिफरेंट लगे. क्योंकि अगर फर्ज कीजिए मैंने ये दो पॉइंट्स, इस पॉइंट को इधर लाया, इस पॉइंट को इधर लाया, ठीक है? अब ये दो पॉइंट्स भी यहां लाए, तो फिर ये वाला चीज यहां बनेगा. इट विल नॉट बी देन द शेयरिंग. समझ में आ रही बात? मेरी बात समझो. मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे पास ये पॉइंट्स ऐसे हैं, 4 पॉइंट्स, मैंने इस पॉइंट को इधर लाया, 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 will this be sharing? No. This is then what is this? आपकी आवाज नहीं आ रही महाराज जी. Simple translation होगी sir. Absolutely, it will be translation, it will not be sharing, because you are moving this object from here to here. You understand? So sharing में क्या करेंगे आप? शेयरिंग में एक पार्ट उधर ही रखेंगे, लेकिन दूसरा पार्ट आपने इधर ले लिया. So that means कि अगर मेरे पास ये दो पॉइंट्स हैं, इनको यहां लिया मैंने, ये अपने पॉइंट उधर ही है, सो अब नया ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? ऐसे. सो इसकी शेप चेंज हो जाएगी. सो दैट विल बी कॉल्ड एज शेयरिंग. और रिफ्लेक्शन आपको पता ही है, रिफ्लेक्शन हमने कर चुके हैं बहुत सारा, वो भी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके अब. सो लेट अस टेक अ टॉक अबाउट नाउ द ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन वेक्टर एंड ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, बिकॉज वी डू इट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स.
फिलहाल हम 2D मैट्रिक्स करेंगे, फिर हम ये करेंगे विद 3 कॉलम मैट्रिक्स, 3 by 3 वो हम बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल मैं ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूँ। सो ट्रांसलेशन में क्या होगा, यू वांट टू मूव पर्टिकुलर थिंग, से फॉर एग्जांपल ये आपकी x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है, you have some point here say p and you are moving it to some direction, okay, and that's called a p prime. Okay, now you have moved this point p to p prime. At p it has some x value and some y value, so that is your x and y, and you have to calculate, because you want to, if you want to translate, you have to calculate the x prime and y prime, कि यहाँ यानी कि इस p का क्या होगा x prime और इस p का क्या होगा y, that is x dash y dash, क्योंकि आपका अगर पॉइंट यहाँ पे था, सिंपल है, आपने दूसरी जगह डाला तो उसका तो कोऑर्डिनेट डिफरेंट हो जाएगा ना। अगर यहाँ पे x इसका 2 था, y 3 था, यहाँ डिफरेंट होगा ना, सो वो निकालना है हमें, ठीक है, बात में आ रही है। सो इसके लिए हमें सिंपल है कि जब अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे ऐसे, ये हमारा यहाँ से यहाँ पॉइंट गया एंड दिस इज, ये जो हमारा है, ये इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन वेक्टर y और इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन वेक्टर x, यानी कि आपने कितना ट्रांसलेट किया, कि मैं कह रहा हूं कि मैंने इतना ट्रांसलेट इसको y में किया और इतना ट्रांसलेट इसको x के, जो यहाँ ये पॉइंट था, फर्ज कीजिए इसका यहाँ 0 1 2 3 पे था ये, और यहाँ से 0 1 2 y था 2, लेकिन अब ये 3 4 5 6 7 पे चला गया है ना, ये 7 पे चला गया इधर, जब ये इस पॉइंट का y क्या है 7, तो इस पॉइंट का y 7 है और x ये है 3 4 5 6 7 8 9, सो x 9 है, तो 9 7 पे चला गया ना ये, ठीक है। यहाँ पे कितना था ये, यहाँ पे था 3 और 2, यानी कि इसका x 3 था और 2 था, ठीक है। अब यहां से 3 से ये 9 तक चला गया है, तो कितना चला गया है, उस जितना चला है उसे कहते हैं t of x, t of, सो ट्रांसलेशन वेक्टर भी हम बोलते हैं, सो दिस कॉल्ड एज ट्रांसलेशन वेक्टर। So translation vector is how much it traversed from particular this point in x direction, और y direction में यहां से इतना चला है जितना ये है, जितनी ये लाइन है, ठीक है ना, and that thing is called as translation vector t of y, ठीक है। और अगर इसका y 2 था और अब कितना चला, ये 5 और चला है, so what will be this, this is 2 plus 5, y direction में चला ये 2 plus 5, 2 ओरिजिनल था और 5 नया है, सो 2 इसका जो y था, ठीक है, जो इसका y था 2 है ना, y is 2, और t of y इसका 5 है। इसी तरीके से x डायरेक्शन में पहले इसको x कितना था 3, सो अगर आपको y प्राइम निकालना है, इस तरह से अगर आपको x प्राइम निकालना है, x प्राइम विल बी कि पहले देखो इसका x कितना था, वो था 3, और फिर देखो इसका ऐड करो जितना इसका t of x था, so x prime will be, x was its 3 और ये कितना चला है आगे, 6 चला है आगे, क्या कि ना उछना हम रीजन 9 minus 3 गुना 6, गो t of x क्या है 6, ठीक है, सिंपल। सो सिंपल, अगर आपको यहाँ पे x प्राइम और y प्राइम निकालना है, x प्राइम will be nothing but whatever the x is plus t of x, and y prime is nothing whatever the y is plus t of y. What is t of x and t of y? Translation vector x and translation vector y. Very good, mashallah. That's really nice. Enough Ayaz is very quick. So क्या करूँ मैं फोन से ना? सर अब नया हिलाना है। Basically मेरे पास 1-2 फोन है यहाँ पे, 2-3 फोन है मेरे पास यहाँ पे ना। आपके ऑफलाइन क्लास भी होंगे अब, क्योंकि कल से हो गए ना ये वैक्सीनेशन। If you want, I can give you that phones, क्योंकि मेरे पास 2-3 फोन्स ना एक्स्ट्रा है। अगर आपको फिलहाल के लिए चाहिए होगा, this will be really nice if I can help in it. मगर वो करे उधर फोन, मगर मैं उसने मुझे कॉल ही कसा खबर क्या। But the thing is, सर अब मैं 1-2 दिन में लाऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा लाना है? जी सर इंशाल्लाह। ठीक। अगर इन केस अगर आपको आइडिया है ना कि यू कैन गेट माय फोन, ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक आईफोन भी है वहां पे और दूसरा मोटोरोला भी है जो कि अभी मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ठीक है। बैकअप उसमें ना लगा पाता है, बिकॉज कोई फोन खराब होता है फिर उसको ठीक करते हैं, यहाँ से नया लाते हैं। अगर आपको जरूरत होगा ना, जस्ट टेल मी,
ओके क्या बोल रहा हूं मैं कि बिकॉज यू आर सच ए गुड स्टूडेंट एंड इतना फोन खराब होने के बावजूद मतलब शी इज रिप्लाइंग बैक, यू जस्ट सी ना फोन जो खराब बट स्टिल शी इज रिप्लाइंग एंड ऑल, दैट शोज द इंटरेस्ट ऑफ अ स्टूडेंट, दैट्स रियली नाइस। एनीवेज सो सिंपल इज कि आपको जो भी x होगा, अगर आपको कोई पॉइंट है उसका x एंड y है, सिंपल दूसरा पॉइंट है उसको आपको ऐड करना है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर जरूरी है कि हम ऊपर गए, हो सकता है कि मेरा पॉइंट ऊपर ही था मैं नीचे आया तो उसमें तो माइनस हो जाएगा, फिर तो कोई बात नहीं, फिर भी माइनस आप प्लस ही करें क्योंकि ये इसका वैल्यू नेगेटिव में अगर आएगा, इससे फर्क में यहाँ गया नेगेटिव में आएगा, सो वो नेगेटिव वैल्यू निकलेगा उसको, ठीक है, तो हम प्लस ही करेंगे, प्लस माइनस माइनस ही होता है, फिर प्लस माइनस होगा ना माइनस ही, ऐसे पे फर्क की सुगेश माइनस पाने ऑटोमेटिकली। ओके सो इसकी जो अब हम दिखाते हैं इन द मैट्रिक्स फॉर्म, किस फॉर्म में दिखाते हैं, इन द मैट्रिक्स फॉर्म हम दिखाते हैं इस चीज को। ओके सो जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में इसको दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे मैट्रिक्स फॉर्म, हम कहेंगे जनाब ये मेरा एक्स प्राइम और वाई प्राइम मुझे निकालना है, ठीक है, और मेरे पास यहां पर है 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ओके, और ये मेरा एक्स वाई है, और इसको मैं प्लस करूंगा टी ऑफ एक्स एंड टी ऑफ वाई, तो इस तरीके से हमारे पास ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकलेगी ट्रांसलेशन की। बाद में दिखाऊंगा हमारे पास 3 यहाँ पे 2 है, ये 3/3 लेंगे, वो क्या होगा वो बाद में बात करूंगा, फिलहाल आप सिंपल करो, ठीक है, कि आज बारिश है ना, इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा ये है, इंटरनेट में थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी दिखा रहा है मुझे। एनीवेज सो ये इसकी हो गई क्या, ये हो गई इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, दिस इज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसलेशन। तो सिंपल है, अगर आपको कोई भी चीज है कि भाई साहब आपको एक अगर आपको कोई क्वेश्चन आएगा जैसे ऐसे यूजिंग ट्रांसलेशन वेक्टर, मेरे पास ट्रांसलेशन वेक्टर दिया हुआ है, से फॉर एग्जाम्पल ट्रांसलेशन वेक्टर दिया है -110, ठीक है, ट्रांसलेट a point with coordinates x इसका 3 है एंड y इसका 5 है, यानी कि मेरे पास 3 5 पे पॉइंट है, यानी कि मेरे पास 3 और 5 पे पॉइंट है, ठीक है, इसको मुझे ट्रांसलेट करना है टू ये 3 जो है वो -1, यानी कि वो -1 पे लेना, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वो वाला है, ये जो वेक्टर है ये है टी वाई टी एक्स वाला, ठीक है, यहां पे नहीं ले जाना है, इस पॉइंट पे नहीं ले जाना है मुझे -10 देखो कहा, बल्कि ये टी ऑफ एक्स और टी ऑफ वाई जो मेरा है इनको ऐड करना है इसमें, डू यू अंडरस्टैंड। सो क्योंकि मेरे पास मुझे पता है कि भाई साहब जो मेरा वेक्टर अगर मेरे पास है, ट्रांसलेशन वेक्टर जो मेरा है दैट इज -1 एंड 10, ठीक है, और मेरा P पॉइंट क्या है यहाँ पे 3 5, ठीक है, so how will I get it, how will I get the P prime, P prime will be nothing but whatever the P is plus T, that is add the vector, so simple will be that if it is 3 5 I have to add it with -1 and 10, so what will it become, 3 को -1 करो कितना बनेगा, 10 को 5 करो ऐड कितना बनेगा 15, so मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट निकलेगा that will be at 215, that means it will be little 2, अगर ये 3 यहाँ पे था मतलब ये 5 था यहाँ पे, say this is 0 1 2 3 4 5, ये मानो 5 था, ये था 0 1 2 3, अब ये 15 पे जाएगा, say for example 15 is here, हाँ, say for example 15 is here, और ये 2 ये है, यानी कि ये पॉइंट उठ के यहाँ चला जाएगा, it has gone here this point, ठीक है, so ये ट्रांसलेट हो गया, does it make sense what I'm saying? You can also translate a full polygon, जैसे मेरे पास एक ट्रायंगल है, मैं इसको ट्रांसलेट करना चाहता हूँ,
एक ट्रायंगल को ट्रांसफर, सो यानी कि ये पॉइंट जाएगा इधर, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट उठ के गया इधर, ये पॉइंट उठ के गया इधर, तो ये बन गया इधर ऐसे ट्रायंगल, यानी कि मैंने इसको ट्रांसलेट किया। सो आई हैव ट्रांसलेटेड दिस ट्रायंगल टू द अदर प्लेस, यानी कि जो आपका पॉलीगन होगा इसके सारे पॉइंट्स मूव होने वाले हैं, ताकि वो अगर आधे पॉइंट मूव हो गए आधे नहीं हो गए तो वो शेयरिंग हो जाएगी, वो ट्रांसलेशन नहीं होगी। ट्रांसलेशन अगर मुझे पॉलीगन का करना है तो मेरे सारे 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 पॉइंट्स मूव होने चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक पॉलीगन, सिंपली कहेंगे ट्रायंगल है, a triangle with coordinates, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ये मानो a b एंड c। a इसका है फॉर एग्जांपल 3,8, b पे इसका है ये वाला पॉइंट, b इसका कहाँ पे लेंगे हम 8 अगर है तो 8 पे ही नहीं, हम 8 11 पे है, और c इसका है 11 3 पे, क्योंकि 3 वापस आएगा इस पे, ठीक है ना। अगर 3 है तो 3 पे वापस आना चाहिए ना ये इस पॉइंट पे, तो ये बनेगा ट्रायंगल मेरे ख्याल से। अब इसको हम क्या करेंगे काम, इसको ट्रांसलेट करना है। ओके, a triangle coordinate is translate with t of x जो आपका है is equal to 3 and t of y जो आपका है वो कुछ करें आप, यानी कि 3 यूनिट करें आप x डायरेक्शन के अंदर, और इसको हम करेंगे 5 करते हैं, 5 यूनिट्स, 5 यूनिट y डायरेक्शन, यानी कि हर एक का 3 x 3 डायरेक्शन इंक्रीज होगा और y 5 डायरेक्शन इंक्रीज होगा। सो इसमें डरने की कोई बात नहीं, सिंपल है, क्योंकि 3 यूनिट्स x जो x है वो हर एक का x, हर एक पॉइंट का x 3 यूनिट इंक्रीज हो रहा है, और हर एक पॉइंट का y 5 यूनिट इंक्रीज होगा। तो व्हाट विल बी आवर जो हमारा ये होगा, व्हाट विल बी आवर a प्राइम, जो अगर a है बिकॉज दिस इज a प्राइम, दिस इज b प्राइम, दिस इज c प्राइम, व्हाट विल बी a प्राइम। अब 3 यूनिट ऐड, 3 यूनिट करो x को ऐड, 8 + 3 को देखो 11 यार ना, ये के सॉरी 3 + 6 3 + 3 is 6, 8 + 5 is 13. you go to a prime. What will be b prime? 11 and 8 + 16. 8 + 3, so 11 + 5. 16. What will be c prime? 11 + 3 14. ना समझ में बात है, ये Yes, सिंपल sir. याद करो 3 ऐड या करो 5 ऐड, सिंपल ये खोचन की इससे वारिया साहब 8, 14, 11 + 3 को देखो 14 पे 8. ठीक है, and this will be my the translation. Now second thing is, this is very simple, now the second thing is rotation. यहाँ से टाइम जा रहा है टाइम जा, रोटेशन करेंगे क्योंकि 10 ही मिनट बच गए अब। सो रोटेशन का क्या है मसला है, कि रोटेशन का मसला ये है भाई साहब कि आपको अगर एक पॉइंट यहाँ पे है फॉर एग्जाम्पल, आप रोटेट कर सकते हो, या तो क्लॉकवाइज कर सकते हो या तो एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हो। फर्ज कीजिए मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज किया या क्लॉकवाइज किया, यानी कि इसको इधर लिया या इसको इधर लिया मैंने इस पॉइंट को। अब मुझे बताना है अगर इसका x एंड y था तो हमारा इसका x प्राइम y प्राइम क्या निकलेगा, या अगर ये p था तो p प्राइम कैसे मैं निकालूंगा, ये रोटेशन का मसला है। तो क्योंकि रोटेशन हमेशा एंगल के साथ होता है ना, रोटेशन हमेशा किसके साथ होता है, एंगल्स के साथ। महाराज दिन आप कभी बोलते हो कुछ मुझे दिखता है डीप रीडिंग, लेकिन आपकी ये कैमरा ये ना म्यूट होता है, आप रखो ना ऑन ही, आपको क्यों म्यूट रखने की जरूरत है, और तेल बनाना चाहिए इंसान तमिश ये कीप इट ऑन ना, सब बंद ही में बस ठीक है जाओ श्योर। ओके, नाउ लुक हियर, so this point is my p and I want to go to the p prime, so I am rotating it in a anti-clockwise direction. So anti-clockwise direction, it's moving in anti-clockwise direction, and I have to see what are the coordinates. ठीक है, and how I do that. So firstly, if I draw it with this thing, so and if I draw it with this thing,
right? Now if I change my pen, now as you see, this is kind of a circle. It's moving in a circle because when you rotate, it's kind of a circle. So that means this will be then the radius of a circle, and this will also be, this will be same radius of a circle, because when you rotate it in a circular motion, then about the center, you're rotating it about the center, है ना? जब भी आप रोटेट करोगे, you will rotate about the center. That means जिधर भी जाएगा उसकी डिस्टेंस सेंटर के साथ सेम ही होने वाली है. क्योंकि अगर आपने ये यहां से यहां उठा दिया, that is translation, that is not rotation. Then rotation means I am keeping the base here, base में अपनी जगह रख रहा हूं और इसको मैं मूव करा रहा हूं ऐसे. So that will be the rotation then. You understand? So I am rotating this point. That means if this is R, this is also R. Okay. So how much will it rotate? That means I have to calculate what is the x prime and y prime of it. यानी कि देखिए ये जो point है इसका x ये था, ये full इसका x था, ठीक है ना? यहाँ तक ये इसका x था, है ना? और ये full यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं ये इसका y है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसका y था, यानी कि जो ये x है वो दरअसल इस ट्रायंगल की बेस है. ये बेस जो है यहाँ से यहाँ तक, ये ही x है इस पॉइंट P का, है ना? और जो इसका y है कि ये कितना y चला है, वो इस ट्रायंगल का ये परपेंडिकुलर है. सो द परपेंडिकुलर इज द एक्चुअली द y, एंड बेस जो इसकी है वो दैट्स द x. ओके. एंड इफ एंड रेडियस मेरे को दिया हुआ है, रेडियस मेरे को क्या दिया, रेडियस मेरे को दिया हुआ है. अगर मुझे देखना है कि ये x कितना है, हाउ मच इज दिस x, ठीक है? तो मैं कह रहा हूं भाई साहब, मान लीजिए ये एंगल फाई है, इट हैज सबटेंडेड द एंगल फाई विद दिस लाइन. सो मुझे पता है एक फॉर्मूला, सब कहो तुम पॉट बाय पॉट, हॉट हॉट बॉट, ट्रिगोनोमेट्री की फॉर्मूला है ना. सब कहो तुम पॉट बाय पॉट, हॉट हॉट बॉट, सिंपल फॉर्मूला. यानी कि अभी मेरे को x निकालना है. क्या निकालना है? x में चाहता हूं कि ये कितना, ये x कितना होगा, यानी कि x, व्हाट इज x? बेस. और मेरे को क्या दिया हुआ है? मेरे को दिया हुआ है ये रेडियस है, परपेंडिकुलर मेरे को पता नहीं है. सो आई नो द 5 मिनट्स, आई नो द बेस. I have to calculate the base. I have to calculate the base. और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है. बेस और हाइपोटेन्यूज कहां पे आपको दिख रहा है? In the cos theta. ठीक है? Is it? So I know cos theta is equal to base over hypotenuse. Hypotenuse. So what will be base equal to? Base will be equal to hypotenuse into cos theta. Guess na, cross multiply. Guess na? Because cos theta is base by hypotenuse. Hypotenuse का base का बराबर base, ये hypotenuse के साथ multiply. So what is your base here? X. Base is your base क्या है आपकी? X. This is cos theta और h hypotenuse जो आपका है, sorry, hypotenuse is r, huh? Hypotenuse what here? R. So this will be r cos phi. Phi है मेरा, ये थीटा नहीं लिया मैंने, phi लिया, या थीटा भी ले सकते हो आप, कोई मसला नहीं. r cos phi. So x is equal to r cos phi. ये सिंपल है, मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है, 8th स्टैंडर्ड की चीज है, मैं लेकिन मैं फिर भी समझा रहा हूँ. आप थोड़ा सा ध्यान दो, ये सिंपल है. अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा मैं फिर रिपीट करूंगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप बोलो मेरे को. अब मेरे को y निकालना है. हेल्प मी इन y, बिकॉज y इज दिस थिंग परपेंडिकुलर. क्योंकि इस पॉइंट का y कौन है? इस पॉइंट का y है ये लाइन, है ना? ये कितना चला है इस लाइन पे, वो है ना ये लाइन, दैट इज में परपेंडिकुलर. और दिया क्या है? r. सो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, Sin theta. that is sin theta, that is here, perpendicular hypotenuse, as you could see this is sin theta. So that means I know sin theta is equal to perpendicular divided by hypotenuse. तो perpendicular किसके बराबर निकलेगा? h sin theta, कैसा multiplier. So perpendicular is equal to h sin theta. तो ट्रांसपोज ना था इतना करो, it's simple. Yes sir. So अब perpendicular की जगह क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? perpendicular कौन है मेरा? y है ना यही. So that is y is equal to
एच कितना है और r sin theta Sin. phi, हाँ phi है मेरा. So this is my x and this is my y. ठीक है ना? मगर मैं केम सुन काडून येम सुन मैं केम पॉइंट बगो था याद पॉइंट इस पे वोस मैं काडून येम पॉइंट क्या काडून बना ये थोड़ा अलग वो उस याद पॉइंट्स में वो भी याद पॉइंट इस ठीक है येम सोस पनुन ये इशू के येमिस पॉइंटस कुछ y ना ये सुनेरना कि ये इस पर रेड लाइन से बना ये मिस पॉइंट होगी p प्राइम जो है इसका y निकलेगा ना ये जो मैं रेड लाइन से बना रहा हूँ ये है ना इसका y जो ना कि याद लाइन पर ये कूदा ये इसका परपेंडिकुलर होगा ठीक है. अच्छा एमसोस x कूदा कि जो ना युतुई पोकमुत एक्सेस में ये मिस x ही सोरी उस ना ये पड़े तामत ये मिस पॉइंट x युतुई क्या ये बेस युस बे x कि युस y ये y प्राइम x प्राइम हां युस हुमिस पॉइंट्स कि ये x ओसा तो y ओस कि ये सोरी ये थनस y मगर y ये पॉइंट्स खतर y प्राइम यानी कि नेक्स्ट युस y एस नो कड़ो दैट इज दिस मच एंड x प्राइम दिस मच ये समझ यवा एंड ये थन अगर phi ये छना बे एंगल रथा करमस थीटा कैसे ना कूल एंगल यूता बनामा युस ये लाइन छे युस ये मिस p प्राइम युस लाइन छे ये बनावा थीटा प्लस phi कूल एंगल छा ये ओस करा एंगल थीटा सबटेंड ये करमुत एडिशनल एंगल कैसे ना ये सोरे की एंगल याथ एंगलस मज phi ते बे ये थीटा ठीक है गो ये युस ये पॉइंट छु एम सुन एंगल छु थीटा प्लस phi छा ये क्लियर समझ आ रहा है ये मुझे करमुत phi योत ये जुना में यो कोनी खुद ना बे गुना अगर ये फॉर एग्जांपल 30 डिग्री छु ये छु 60 डिग्री है ना या फॉर एग्जांपल ये छु 70 डिग्री गो छु 40 डिग्री बे खुद मुत होर ये बोकना यो कुन समझ आ रही है सो अब इसका x प्राइम किसके बराबर निकलेगा बताओ मुझे x प्राइम इसका पॉइंट p का क्योंकि मुझे पता है कि x हमें निकलने वाला है यूजिंग द cos थीटा r cos थीटा एम सुन x का था इस बराबर तला मैंने r cos cos theta plus phi Theta plus phi. phi plus